student, I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am take another topic, linear magnification for the convex mirror. We already seen about the concave mirror. Today convex mirror. Convex mirror. Okay, student, that is the demand of today's linear magnification for the convex mirror, class 10, light reflection and refraction. Student, convex mirror. In the case of the convex mirror, what is the meaning of the convex mirror? A type of mirror in which outer surface behave like a रिफ्लेक्टिंग सरफेस. देखिए स्टूडेंट, या तो आप इसको ठीक है ऐसा 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 करके शेड करेंगे जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है, या तो आप उसको दोनों साइड से बेंड कर दीजिए. देखिए मैंने इधर बेंड करा है, दैट मीन्स अ कॉन्वेक्स मिरर, और इस तरफ मैं बेंड करता तो ये क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर MN is a convex mirror and this, what is this? This is a principal axis line. What is the meaning of the principal axis line? A imaginary line which passing through the center of curvature and pole and focus. ठीक है, याद रहेगा. What is the mean of center of curvature? A center of mirror are known as center of curvature. Pole मतलब a midpoint between the focus, that means a midpoint between the pole and center of curvature are known as the focus, and pole, that means a center of reflecting surface, are known as pole. Okay student, in the case of concave mirror, जरा हम ध्यान से देखेंगे, जब हमने इसी डायग्राम को concave मिरर में देखा था, इन द केस ऑफ द concave मिरर, ठीक है, हमने याद है सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया था. लेट वी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये कैसा आ रहा है, ये पोल पर आ रहा है. फर्स्ट बीम अराइव ऑन द पोल, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, पासिंग द सेम मीडियम, ठीक है, विद द सेम एंगल. एंड सेकेंड वन, लेट वी कंसिडर दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकेंड बीम आ रही थी, तो हमको यहाँ पर मिला था इमेज. क्या मिला था स्टूडेंट, इमेज. ये पूरा का पूरा डायग्राम हमने किस में देखा था, ये हमने डायग्राम देखा था कॉनकेव मिरर में. अब हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं. लेट वी कंसीडर व्हाट इज दिस इज अ एनी इमेज. ठीक है, फर्स्ट बीम थ्रू द पोल, पहली बीम जो ले रहा हूँ मैं वो कैसी ले रहा हूँ, पोल पे, तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेम कॉन्सेप्ट in the case of the concave mirror, in the case of the convex mirror, same. First beam arrive on the pole, then after the reflection passing in the same medium with the same angle. Here angle are similar, but this principal axis line just behave like a normal, and this is a incident ray and this is a reflected ray. So these angle are known as angle of incidence, and these will be equal of angle of reflection. Okay student, let we consider AB is any object which consists above the principal axis line. Then second beam arrive through the center of curvature, then after the reflection passing the same path. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, let we consider another beam, ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिख रहा आपको क्लियर कट. लेट वी कंसिडर दिस बीम अराइव ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग द सेम, यहाँ पर आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. बट हम एक इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी इमर्जेंट रे बनाएंगे, तो वो कहाँ पे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ओके, तो इसका भी हम थोड़ा सा इमेजनरी ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है, देन वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द टू इमेजनरी लाइंस. सो इमेज विल बी इक्वल. आप इसको भूल जाइए थोड़ी सी देर के लिए, मुझे जरूरत है भी नहीं. ए, so A dash is a image and B, that means a B dash is a image. So image formed in the form of A dash B dash. Okay student, by use of the concave mirror we can drive a convex mirror. Here MN is a convex mirror and AB is a object.
first beam arrive on pole, then after the reflection passing the same medium with the same angle, और second beam कैसी आएगी स्टूडेंट, ठीक है, towards in the direction of center of curvature. Then after the reflection through the 2 points we getting the intersecting point, a perpendicular line from the principal axis line to the intersecting point are naming इमेज. ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. नाउ बिल्कुल प्यार से बात समझिए. व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन. सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन. यू नो दैट वेरी वेल. लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय m will be equal of capital I and capital O. What is the meaning of the capital I? Capital I, that means a length of image, and capital O, that means length of object. So definition, ठीक है, linear magnification is a ratio. Linear magnification is a ratio. ये अपॉन का साइन दिख रहा, तो इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलूंगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, ठीक है. लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. It is represented by small m. If capital I is a size of image and capital O is a size of object, such that we can return m will be equal of I by O. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, मुझे क्या करना है, मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना. तो आप बोलेंगे सर ये तो ड्राइव हो चुका, बट वी हैव टू ड्राइव m इक्वल टू माइनस v बाई u. दैट मीन्स अ रिलेशन with respect to v and u. V, that means a distance of object from the pole, and u, that means a distance, or v, that means a distance of image from the pole, and u, that means a distance of object from the pole. Okay student, so we have to derive m will be equal of minus v by u. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए, अपनी मदद के लिए नहीं, आपकी मदद के लिए एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ. अगर जो आपको समझ आया तो आप बताइएगा. ठीक है, आप समझ गए. ठीक है, ध्यान से देखिए. ये जो है, दिस पार्ट इज डिफाइंड एज अ ए बी एंड दिस पार्ट इज डिफाइंड एज अ ए डैश बी डैश एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ पी. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स अ आई. ओके स्टूडेंट, इन ट्राइंगल, हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं. एक ट्राइंगल हो गया ए बी पी, दैट इज अ करेक्ट नेम और नॉट. अगर जो आप मैथमेटिक्स में हो तो ये नाम बिल्कुल गलत है. ट्राइंगल बी ए पी, इन द केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 होता है उसको हम काय पे लिखते हैं, सेंटर पे. तो इन ट्राइंगल बी ए पी एंड ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा. किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे दो चीज इक्वल होना जरूरी है. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. दिस विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. बट मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ देखिए. ठीक है, आपने क्या बोला था, दिस एंगल आर नोन एज द रिफ्लेक्टेड एंगल. तो अगर जो आप बोलते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इन द केस ऑफ द एक्स, opposite angles are known as the vertical opposite angle. So these angle are, so due to this r, this angle also equal to r. This angle also equal to r. ध्यान से देखिए. देखिए, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ, लेट एंगल ए
APB equal to theta. Let this angle will be equal of theta. But by law of reflection, we know that angle of incidence will be equal of angle of reflection. Angle I equal to angle R. That means angle I APB और R मतलब A dash P B dash, A dash P B dash equal to APB. But you told APB will be equal of theta. तो आप कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं ये भी कितना हो गया थीटा. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखा आपने. ठीक है, मैंने इसको कितना कंसीडर करा थीटा, और मैंने बोला ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल, तो ये थीटा तो ये भी कितना हो गया थीटा. तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ एंगल PABAP will be equal of PA dash B dash, both are equal to 90 degree. This angle also equal to 90 and this also equal to 90. And second one both angles will be equal of theta. P angle BPA equal to B dash PA dash. ये भी कितना हो चुका है स्टूडेंट, will be equal of theta. In any triangle, if two sides are equal, if two angles are equal, one angle one side are equal, मतलब कोई भी दो चीज बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस. What is the meaning of the perpendicular? Here AB is a perpendicular of this triangle, so written as the AB, and here A dash B dash, perpendicular by perpendicular base, that means a AP, and again base, that means a PA dash. Okay student, by sign convention property, ध्यान से देखिए AB by A dash B. AB, what is the meaning of the AB? That means the object I image. So O by I will be equal of AP. ध्यान से देखिए AP, अगर जब आप AP की बात करेंगे तो AP will be equal of minus U. इस तरफ नेगेटिव होता है और इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव. So AP will be equal of minus U and PA dash will be equal of V. स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर पता है M will be equal of I by O, बट मुझे यहाँ पर उल्टा आ चुका है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ. तो इधर भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. बाय यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन से I upon O, I by O will be equal of M that means a linear magnification. We derive M will be equal of minus V by U for the convex mirror. Okay student, थोड़ा सा recall कर देता हूँ. By the definition of the linear magnification, we know that M equal to I by O. I that means a size of image and O that means a size of object. ये हमने डायग्राम बनाया. फर्स्ट बीम पोल पे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, रिफ्लेक्ट हो गई. सो ये दो ट्राइंगल का यूज कर रहा हूँ. कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट? दिस ट्राइंगल एंड सेकेंड वन दिस ट्राइंगल. ये दोनों ट्राइंगल लिए मैंने. इन द ट्राइंगल दो चीज बराबर करी सच दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर. परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर विल बी इक्वल ऑफ बेस बाय बेस. हमने चारों वैल्यू को पुट करा बाय यूज ऑफ द साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी. क्या होती है साइन कन्वेंशन? अपर केस में पॉजिटिव, लोअर केस में नेगेटिव. ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर चाहिए I अपॉन O, बट वी गेटिंग द O बाय I. तो मैंने रेसिप्रोकल करा I अपॉन O विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा. स्टूडेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम आवर चैनल.